Hello everyone, welcome back to my channel. So we are starting from the video where we left last. तो अगर आपने नहीं देखा, link in the description. Do check that out and keep watching my video. The water level is so low कि you can actually walk through to the the islands. पूरे टापू तक आप वॉक कर सकते हो, इतना लो वाटर लेवल होता है यहाँ पे. वो रही पुरानी ब्रिज फ्रॉम रामेश्वरम टू राम सेतु. So we have reached Kothan Dharmar temple and this is the only place जहाँ पे विभीषण जी का राज्याभिषेक किया था लक्ष्मण जी ने. This is that place. That side Rameswaram temple. हाँ, रामेश्वरम temple. After returning from Sri Lanka, the Lord Rama took bath there at Ram Kund and Lakshman Kund. Then Ma Sita created Shivlingam, and then here at this place, the Rajyabhishek of Vibhishan was conducted by Lord Rama, and this place is Sri Lanka. It seems. That is From 3 kilometers from here, there is a Dhanush Kodi. There, on the request of Vibhishan, Lord Rama damaged the bridge. And 5 kilometers away from Dhanush Kodi, there is a bridge. From where bridge was constructed by Lord Rama. The end point of which is Ram Setu. Very well explained by my father. Kudos, Dad, kudos. So this is the house of Kalam, Abdul Kalam's house. Such a historic place this is. And right after Kalam's house is Seashell Mall, which is built by his brother. कलाम जी के भाई ने ये मॉल बनाया है और ये उनका घर है. यहाँ पे उनकी पूरी स्कूलिंग एंड एजुकेशन ही हैज़ कम्प्लीटेड फ्रॉम दिस हाउस ओनली. ऊपर छोटा सा म्यूज़ियम है. लेट्स गो चेक दैट आउट. तो अभी इनका पूरा घर म्यूज़ियम बन गया है. वी आर इनसाइड कलाम्स हाउस. उनकी सारी memories, everything they have shown. Mission of life, Dr. APJ Abdul Kalam. This was his original house, the same place जहाँ पे पूरी बिल्डिंग खड़ी हो गई है. That was his house. Reached our hotel, Star Palace. Forgot to give you the room tour. This is the wardrobe. This is the washroom, which has a huge mirror and the door. And this is the washroom. It's very nice. Okay. And we have this look. And here is the view. Hello everyone. Yeah, I think we are done for today. It's already 7:30 and मंदिर ऑफ कोर्स क्लोज भी होने वाले हैं. तो अब कल सुबह सब कंटिन्यू होगा. सो आई जस्ट थॉट ऑफ एंडिंग माई वीडियो. आज बहुत अच्छा दिन रहा, बहुत अच्छे दर्शन हुए. सो या अभी हम डिनर करेंगे एंड टुमारो इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डे. And I'm just so glad that I got to visit everything
that I wanted to. Vibhishan Mandir, वो भी बहुत अच्छा था. I'm so happy that I got to see Rameshwaram. और अभी भी there are lots to explore tomorrow. And सब रामेश्वरम कल हम cover करेंगे सुबह, and सब देखते हुए check out करके बैक टू मदुरई, क्योंकि हमारी फ़्लाइट परसों है फ्रॉम मदुरई. मदुरई में कुछ पॉइंट्स हैं जो हम कवर करेंगे मे बी इन द इवनिंग और डे आफ्टर टुमारो इन द मॉर्निंग, बिकॉज वी हैव अ फ्लाइट इन द आफ्टरनून. तो आप देखते रहो मेरी व्लॉग सीरीज़, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे एंड आपको व्यू मिलता रहेगा, आपको दर्शन होते रहेंगे. सो जस्ट कीप वॉचिंग. और अगर पहला एपिसोड नहीं देखा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ देखो. जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. That's what it takes. That's it. Okay. This is our dinner. Simple food. The next day. Hello everyone, welcome back to my channel. If you haven't watched the previous 2 episodes, link in the description, go check it out. Okay. So today we are going for the main temple. आज सारे कुंड स्नान करने हैं and right now it's 4:30 in the morning. 4 बजे करीब उठ गए थे and we just got a shower. सुबह नहाया है क्योंकि हमें मणि दर्शन करने हैं. मणि दर्शन सिर्फ 5 से 6 बजे तक ही होते हैं. तो जो शेषनाग के मणि हैं जिसमें विष्णु जी विराजमान हैं, उनके हम दर्शन करेंगे. और बहुत ज़्यादा रश होने वाला है सुबह. और उसके बाद हम स्नान करेंगे सारे कुंड के, फिर मेन मंदिर के दर्शन करेंगे, फिर हमें दोबारा होटल आना है, ब्रेकफास्ट करेंगे. सो आई डोंट थिंक कि फ़ोन कहीं भी अलाउड होगा. सो आई हैव टू कीप माई फ़ोन, मोबाइल कैमरा, नथिंग इज़ अलाउड इनसाइड माई बैग ओनली. तो अभी बस उन्हीं के दर्शन करने निकल रहे हैं. तो जब हम सारे दर्शन कर लेंगे, जहाँ जहाँ जो शूट हो पाएगा, आई डू इट एंड विल सी उसके बाद कैसे क्या प्लान्स होते हैं. फिर हम जब वापस होटल आएंगे, हमें फटफट चेकआउट करना है और कुछ और पॉइंट्स हैं रामेश्वरम में, वो देखते हुए हमें मदुरई जाना है. सो इन दिस वीडियो आप एंड तक ज़रूर बने रहें क्योंकि बहुत कुछ हम मदुरई में भी देखने वाले हैं एंड रामेश्वरम में भी. सो जस्ट कीप वॉचिंग. So in any of the temples, either in Madurai or in Rameshwaram, आप कहीं भी हाफ लेंथ के आउटफिट्स नहीं पहन सकते. आपको फुल्ली कवर्ड रहना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम. सो मैंने सोचा था कि स्नान करते वक्त मे बी शॉर्ट्स वगैरह पहन लेती, बट क्योंकि हमें मणि दर्शन करने हैं जो मंदिर के अंदर जाना है, सो फॉर दैट यू हैव टू वेयर फुल आउटफिट्स. तो दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग फुल ट्राउजर्स एंड लाइक नॉर्मल टॉप. तो दर्शन करके तुरंत स्नान करना है. सो दिस थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड कि आप हमेशा फुल ही पहने साउथ के टेम्पल्स में. एंड वी आर कैरिंग 2 लाइक हैंड बैग्स. एक में मेरे डैड और मेरे भाई के आउटफिट्स हैं जो वो नहा के चेंज करेंगे, एंड एक मेरे मॉम के और मेरे. और हमने एक पंडित जी कर लिए हैं. तो जस्ट ट्राई टू हायर समवन, बिकॉज अगर कोई होगा नहीं आपके साथ तो फिर ये दर्शन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतने कुंड हैं, करीब 22 कुंड हैं. देन मेन मंदिर है, कहाँ पे किस तरीके से स्नान करना है, किधर कैसे दर्शन होने हैं, इसका आपको कोई नॉलेज नहीं होता. और लैंग्वेज प्रॉब्लम इज़ द मेजर इशू. ना हिंदी अच्छे से आती है ना इंग्लिश. तो कोई ऐसा गाइड या पंडित ज़रूर ले लें जिन्हें प्रॉपर हिंदी आती हो. दैट वुड बी ग्रेट. हमने तो गूगल में नॉर्मल सर्च कर लिया था एंड वी गॉट द नंबर फ्रॉम गूगल इटसेल्फ इन मदुरई. सो ऑलवेज हायर समवन, देन इट विल बी वेरी इजी टू विजिट प्लेसेस. ओके. सुबह भी नहीं हुई है एंड वी आर जस्ट हेडिंग टूवर्ड्स और मणि दर्शन. तो हम अभी बस मणि दर्शन करके एग्ज़िट किए हैं. हमने ये ईस्ट गेट से एग्ज़िट किया. एंट्री हमने वेस्ट गेट से की थी. हमें हमारे पंडित जी वेस्ट गेट में ही मिल गए थे. तो मणि दर्शन बहुत ही सुंदर हो गए, बहुत फटाफट हो गए और बहुत अच्छे रहे दर्शन. अब हम बस स्नान करने जाएंगे और मेन मंदिर के दर्शन करेंगे. चलो, यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है. करा दिए. बहुत ही छोटी सी वो स्फटिक लिंक है जो मणि है. और सभी साउथ के मंदिरों में ना जो मेन मूर्ति के आसपास का जो पूरा एरिया होता है जिसके अंदर उनकी स्थापना होती है, वहाँ पे मोस्टली दीप से ही उजाला किया जाता है. कोई भी आपको लाइट नहीं दिखेगी, सिर्फ दीप से आप उनके दर्शन करें. दिए जलते रहते हैं. जितने भी साउथ के मंदिर आप देखेंगे दिए ही जलते रहते हैं आसपास.
जितना सोचा था उतना रश नहीं मिला, और क्योंकि पंडित जी थे तो फटाफट हमारे दर्शन हो गए। हमने अच्छे से दर्शन कर लिया। बारिश काफ़ी तेज़ यहाँ पे शुरू हो गई, आप देख सकते हैं, आपको लाइट में बारिश दिख रही होगी। बस यही है, अब यहीं से हम जा रहे हैं स्नान करने, और फ़ोन मैं अंदर रख दूँगी। सारे कुंड के स्नान होंगे और इसके बाद बढ़िया दर्शन करेंगे। अगर आप सुबह सुबह एकदम टाइम पे आ गए, मतलब आप 5 बजे एकदम एंट्री कर लो, तो आपको दर्शन अच्छे हो जाएंगे। अब देख सकते हैं पूरा यहाँ पानी आ रहा है, यहीं पे अब स्नान होगा। हाँ, ये तीर्थम के बहुत बढ़िया स्नान हो गए। बस अब हम जा रहे हैं कुंड में अब स्नान करने। आपको इसी तरीके से बैग लेना है और स्नान करते जाना है। लेट्स गो। गाय आ रही है, अरे यार। अभी हम अग्नि तीर्थम के दर्शन करके आए हैं। जा रहे हैं 22 कुंडों के स्नान करने, उसके बाद हम करेंगे मंदिर के दर्शन। क्लाउडी हो रखा है इस वक्त। सुबह के 6 बज गए हैं इस वक्त। हम 5 बजे यहाँ आ गए थे, मणि दर्शन किया, अग्नि तीर्थम हो गया। और रश कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। सुबह वैसे बहुत रश होता है, शाम को भी आप दर्शन कर सकते हो। 4 बजे से मंदिर खुल जाते हैं और आप स्नान भी कर सकते हो 7 बजे तक आराम से। लेकिन सुबह भी बहुत बढ़िया दर्शन हो गए हैं क्योंकि रश काफ़ी कम है। ये है यहाँ पे सारी बाल्टियाँ। 22 कुंड है, पंडित जी हमारी बाल्टी निकाल रहे हैं और इन्हीं बाल्टियों से हम एक एक करके कुंड के स्नान करते जाएंगे। यहीं से एंट्री है कुंड में जाने की। और अब सारा आपको बैग्स और सब कुछ या तो आप अपने पंडित जी को दे दीजिए या लॉकर रूम में रख दीजिए। ये हम कुंडों के दर्शन ही कर रहे हैं, कुंड में फटाफट हम स्नान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पंडित जी खड़े होते हैं, छोटे छोटे कुएं जैसा बना हुआ है, वो बाल्टी से आपको स्नान कराते जाते हैं फटाफट। मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लूं, बस अब मैं जा रही हूँ स्नान करने। हमारे अभी 6 कुंड हो गए हैं और बाकी अभी बाकी हैं। चल कलश काशी भवन का कलश हनुमान जी का कैलाश में ले गया ना, उस काशी विश्वनाथ का कलश। अच्छा तो कलश है, मतलब मंदिर के ऊपर मंदिर ये है मेन मंदिर। अभी भी यहाँ पे देखिए आप कुंड के स्नान चल ही रहे हैं। बहुत सारे कुंड है, लक्ष्मी कुंड और आपके नील कुंड, कमल कुंड, ऐसे ही कुंड के नाम है। और फटाफट यहाँ पे ये हमारे पंडित जी हैं, स्नान कराते रहते हैं। ये पापा मम्मी। ये अभी हम ब्रह्मावती कुंड में आ गए हैं। तो अभी हमने पूरे 22 कुंड के स्नान कर लिए और यहाँ पे है फीमेल का चेंजिंग रूम, यहाँ पे मेल का चेंजिंग रूम। हम लोग चेंज करके आ गए हैं। हमारे पंडित जब हमें मेन टेम्पल के दर्शन कराएंगे। कुंड के स्नान इतने सुंदर तरीके से हुए हैं, मज़ा आ गया भाई। चलो मंदिर के दर्शन करते हैं। अभी हमारी बहुत ही सुंदर पंडित जी ने पूजा करा दी, हमारी पूजा हो गई। ये एक पत्थर में नंदी जी बने हैं पूरे। वीडियो बना। इसके अंदर कह रहे हैं मंदिर में सोने का रथ है। बस हम पूरा दर्शन करके अब निकल ही रहे हैं। और आप ये देखिए कितने सुंदर सुंदर गलियारे यहाँ पर तो सुंदर बनाया हुआ है। सबसे बड़ा गलियारा यही है। तेरा कॉरिडोर की फोटो
सबसे बड़ा गलियारा यही है। 1212 पिलर्स हैं ये टोटल। ये देखिए हम लोग निकल ही रहे हैं। ये बीच में कमल कुंड है, यहीं पे हमने अभी स्नान किया था कमल कुंड में। अंदर ही अंदर सारे कुंड हैं। ये ईस्ट गेट है बाबा का। It's a beautiful temple, man. बहुत हंसाते हैं मेरे भाई। हम लोग आ गए हैं होटल, दर्शन हो गए हैं बहुत बढ़िया रामेश्वरम बाबा के। पूरे 2.5 घंटे में दर्शन हो गए। 7:45 हम अपने रूम में आ गए। अब थोड़ा सा रेडी हो जाएंगे और अच्छे से और सामान वामान पूरा पैक करके ब्रेकफास्ट करके चेकआउट कर देंगे 2 घंटे में। और अभी भी रामेश्वरम में 2-3 मंदिर रहते हैं। कौन से थे वैभव? हाँ, लक्ष्मण तीर्थम 2-3 मंदिर है। एक लक्ष्मण तीर्थम है और भी 2 मंदिर बहुत ही फेमस हैं। वो देखते हुए हम मदुरई के लिए निकल जाएंगे। कुंड के दर्शन बहुत ही सुंदर रहे और इनका यही मानना है कि अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो भगवान ने आपको पैसा दिया है तो आप उसको यूज़ करिए। तो दर्शन के भी कैटेगरीज हैं हर मंदिर में। हम मीनाक्षी मंदिर जब गए थे, आप एपिसोड 1 में देखना, मीनाक्षी मंदिर में वहाँ पे भी 25 रुपये की भी लाइन लगती है, 50 रुपये की भी लाइन है, 100 ऐसे चलती चली जाती है लाइन। तो अगर आप टिकट्स लें, अगर आप कैपेसिटी के हिसाब से अगर आप टिकट्स ले सकते हैं इस तरीके से और पंडित अरेंज कर सकते हैं तो बहुत ही सुंदर रहता है। और यहाँ पे जो फ़िक्स टिकट्स हैं वो ये हैं कि 50 रुपीज़ पर पर्सन आपका मणि मंदिर के दर्शन है और 10 रुपीज़ एक कुंड का लगता है एक आदमी के लिए। तो 22 कुंड है तो 220 में एक इंसान के कुंड के दर्शन हो जाते हैं। और अलग से हमने जो अभिषेक कराया था और बाकी सारे दर्शन कराए थे उसके तो पंडित जी ने 1500 लिए हैं। वो फिक्स अमाउंट चलता है, आपको कोई ज़्यादा कम करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ऑल फिक्स, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती और दर्शन भी बहुत सुंदर हो जाते हैं। तो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से ये साउथ का कल्चर है जो बहुत ही अच्छा है। अपने जैसे अपने मंदिरों में एकदम भगदड़ मच जाती है और नहीं कोई 5000 लेगा, कोई 4000 लेगा, तो इतना दो तो उतना दो, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है, पूरा फिक्स चलता है। बाकी तो आपकी श्रद्धा होती है। सो यार दर्शन इतने सुंदर हुए, मतलब मुझे लगा नहीं था कि सुबह 4 बजे उठ के मैं इतनी एनर्जेटिक फील करूँगी। बट नींद भी एकदम टाइम पे खुल गई और दर्शन भी इतने अच्छे हो गए। तो एक अलग लेवल की एनर्जी आपको ना ऊपर से मिल जाती है कि इतना अच्छा स्नान हो गया कि बस आई एम फीलिंग सो फ्रेश। अब बहुत ही जल्दी आई एम फीलिंग सो फ्रेश और फटाफट ब्रेकफास्ट करेंगे। So this is our final goodbye to Rameshwaram Hotel, Spark Palace. Let's go मम्मी। ले के बस सामान सेट हो रहा है। मम्मी इज पोजिंग। पिक क्लिक करूँ मम्मा? कर रही हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल होटल यार, बहुत सुंदर। बाहर से एकदम वाइट पेज कलर में है दिस होटल। ओके मैं पिक क्लिक कर लेती हूँ। Okay, so here I'll end my video. That's it for today's video. I hope you liked it, and if you did, like, share and subscribe to my channel. You know the drill. Until we meet, lots of love, stay happy, do what you love doing, and keep watching my videos. Thank you.